Hello student, today we will learn Science Standard 5th. This is the cover page of your worksheet. Standard 5th, subject Science. In the last video, we had completed worksheet 1 and worksheet 2. In some exercise like question 1, question 2 and question C. So dear student, today we will learn question D in your worksheet 1 and worksheet 2. Okay, so first question, worksheet 1, question number D. Answer this question. Get started. So first question D, worksheet 1, question D. Answer this question. 1. First question, what is an habitat? What is an habitat? Habitat क्या है? So answer, the natural home or surrounding of an animal where it lives, eat, grows and has babies is called its habitat. Okay. So what is a habitat? The natural home or surrounding of an animal where it live. जो नेचर है ना, एनिमल्स रहते हैं ना, एंड क्या है हैबिटेट? हैबिटेट को हिंदी में कहते हैं आवास. ओके, उनका रहठान, जहाँ पे वो रहते आवास करते हैं, उसे कहते हैं हैबिटेट. बट डेफिनेशन इज हैबिटेट इज द नेचुरल होम और सराउंडिंग ऑफ एन एनिमल वेयर इट लिव्स. आजू बाजू में एनिमल्स रहते हैं, जो नेचुरल होम है, वहाँ पे वो खाते हैं, ईट्स, वहाँ पे उनकी ग्रो होता है, ग्रोज एंड हैज बेबीज, इट्स कॉल्ड इट्स हैबिटेट. ओके, सो क्लियर? व्हाट इज एन हैबिटेट? द नेचुरल होम और सराउंडिंग ऑफ एन एनिमल वेयर इट live, eat, grows and has babies is called its habitat. Now second, what are the organs of breathing of a frog? What are the organs of breathing of a frog? Correct answer, a frog is an amphibian. A baby frog or a tadpole breathes through its gills. An adult frog breathes through its lungs or land and through its moist skin in water. Okay, so frog क्या है? Is an amphibian. Frog यह जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है. सो जो बेबी फ्रॉग है, बेबी फ्रॉग और टेडपोल्स, यह ब्रेथ थ्रू इट्स गिल्स, यह गिल्स के थ्रू ब्रेथ करते हैं. एंड जो अडल्ट फ्रॉग है, ब्रेथ थ्रू इट्स लंग्स ऑन लैंड, जमीन पे वो लंग्स के थ्रू. जो अडल्ट फ्रॉग है वो जो लैंड के ऊपर ऑन अ लैंड लंग्स के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं. एंड इन अ वाटर यह मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रेथ करते हैं. ओके, सो understood. What are the organs of breathing of a frog? A frog is amphibian. A baby frog or tadpole breathes through its gills. An adult frog breathes through its lungs on land and through its moist skin in water. Okay. Last, why do birds migrate? Why do birds migrate? Answer, birds migrate to escape harsh weather, to search for food and to reach their breeding grounds. Okay, so why do birds migrate? Okay, प्रस्थापन क्यों करते हैं? जो बर्ड है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे डायरेक्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्री क्यों जाते हैं? सो बर्ड माइग्रेट टू एस्केप हार्श वेदर. वहाँ का जो वेदर है हार्श होने के कारण, उनके मुताबिक वेदर जहाँ पे होता है वहाँ पे वो जाते हैं. टू सर्च फॉर फूड, और एक रीज़न है फूड के तलाश में जाते हैं. एंड टू रीच देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स. ओके, तो इस तरीके से बर्ड्स माइग्रेट करते हैं. ओके, इट्स रीज़न के लिए. अंडरस्टूड स्टूडेंट? व्हाई डू बर्ड माइग्रेट? Birds migrate to escape harsh weather, to search for food and to reach their breeding grounds. Okay.
Then, dear student, look at the worksheet 2. Question D. Answer these questions. First, describe organs of feeding of carnivores. Second, why do animals need to move? And third, why are humans the most developed among all animals? So, dear student, first, describe organs of feeding of carnivores. So, first answer, carnivores have very sharp, pointed and curved front teeth for tearing flesh. ओके सो जो कार्निवर्स एनिमल जो है डिस्क्राइब ऑर्गन्स ऑफ फीडिंग ऑफ कार्निवर्स एनिमल्स जो कार्निवर्स है उनकी फीडिंग के ऑर्गन्स को बताना है, डिस्क्राइब करना है. ओके सो कार्निवर्स हैव वेरी शार्प, उनके जो टीथ होते हैं, फ्रंट टीथ होते हैं, वो कैसे होते हैं? वेरी शार्प, पॉइंटेड एंड कर्व फ्रंट टीथ फॉर क्यों? टीयरिंग फ्लेश नहीं, टीयरिंग फ्लेश, मांस खाने के लिए उनके जो आगे के जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प, पॉइंटेड एंड कर्व होते हैं. दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग रीडिंग टीथ टू चाव द फ्लेश एंड द बोन्स. और उनके जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग रीडिंग. ओके जो मांस है, फ्लेश और बोन्स को चबाने के लिए. ओके तो इस तरीके से कार्निवर्स हैव वेरी शार्प, पॉइंटेड एंड कर्व फ्रंट टीथ फॉर टीयरिंग फ्लेश. They also have strong breathing teeth to chaw the flesh and the bones. Second, why do animals need to move? Animals को मूव की क्यों जरूरत होती है? Why मूव करते हैं एनिमल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस? सो आंसर, एनिमल्स नीड टू मूव इन ऑर्डर टू सर्च फॉर फूड की तलाश में, प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड देयर बेबीज फ्रॉम बीइंग हंटेड. ओके और अपने बेबीज को हंटेड के लिए, एंड बर्ड रिस्टिंग एंड ब्रीडिंग प्लेस. ओके सो अंडरस्टूड. एनिमल्स, व्हाई डू एनिमल्स नीड टू मूव? So animals need to move in order to search for food, protect themselves and their babies from being hunted, and build resting and breeding places. Okay. Then last, why are humans the most developed among all animals? So answer, the limbs of humans are highly developed. The limbs of humans are highly developed. They stand. ह्यूमंस के जो पैर होते हैं, लिम्स होते हैं, वो ज़्यादा डेवलप है. दे स्टैंड, वॉक एंड रन, खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं, रन कर सकते हैं विथ ओनली वन पेयर ऑफ लिम्स, है ना. वन पेयर ऑफ लिम्स है मतलब हमारे पैर. देयर हैंड्स एंड थम्स अरेंज, देयर हैंड्स एंड थम्स, है ना, अरेंजमेंट आर अडेप्टेड टू होल्ड ऑब्जेक्ट. अपने हाथों का थम्स और फिंगर का कैसे अरेंजमेंट किया हुआ है कि कुछ भी थिंग्स हम ऑब्जेक्ट हम पकड़ सकते हैं. एंड डू मैनी काइंड ऑफ वर्क, और कुछ वर्क कर सकते हैं ना, जैसे कि लिख सकते हैं. पेन पकड़ने के लिए हमें थम्स और फिंगर की ज़रूरत होती है. ओके तो इस तरीके से हमारी थम्स और फिंगर की अरेंजमेंट की गई है कि कुछ भी थिंग्स हम ऑब्जेक्ट हम होल्ड कर सकते हैं. और डू मैनी थिंग्स, मैनी काइंड ऑफ वर्क. दस ह्यूमन्स आर द मोस्ट डेवलप्ड अमॉन्ग ऑल एनिमल्स, है ना. इस तरीके से ह्यूमन्स ऑल एनिमल्स से डेवलप्ड है. ओके सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न वर्कशीट 1 एंड वर्कशीट 2 some question answers. Question D. Okay so dear student, write down in this question answer in your science notebook. Okay वाई? बिकॉज वर्कशीट में इसी आंसर के लिए आपको स्पेस ही नहीं है, जगह नहीं है. ओके तो इसलिए ओनली क्वेश्चन आपको वर्कशीट से देखना है, बट आंसर आपको इन योर राइट डाउन इन योर साइंस नोटबुक. आपके साइंस के नोटबुक में आपको लिखना है हाउ मेनी टाइम? 2 टाइम, 1 टाइम CW एंड 1 टाइम SW. ओके अंडरस्टूड. थैंक यू.